आदित्य राज चंद्रा। Yesterday you were absent from tute class. आयुष प्रताप। अभी भी बहुत सारे बच्चों की ट्यूट 2 मुझे नहीं मिली है। ट्यूट 2 आज जरूर सबमिट कर दी है जिनकी भी नहीं जमा हुई है पॉजिटिवली। अभिनव श्रीवास्तव। कल ट्यूट क्लास में एब्सेंट थे। है? क्यों? लास्ट लेक्चर में एक तो काफी टाइम हो गया लेक्चर लिए हुए बिकॉज सम अदर एंगेजमेंट। In last lecture we discussed about the control, what is the need of control and the types of control. There are three types of control. First one is information system control, second one is facility control and third one is facility procedural control. ये थ्री टाइप सभी को पता है। सभी लोग अवेयर है इससे, लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था। आवाज नहीं आई, रिस्पॉन्स नहीं आया कोई। कल्याणी। हाँ, ये थ्री टाइप्स आपको पता है कंट्रोल्स के। क्या हो रहा है? तो आवाज नहीं आई, नाम लेंगे तभी आवाज आएगी क्या? रिस्पॉन्स रहता रहे सही है ना, पता चले कि क्या बोल रहा हूँ, सुनाई पड़ रहा है, वहां तक जा रही है आवाज। आज जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बल्कि सारे टाइप्स लगभग हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लोग अभी भी जुड़ रहे हैं। अब्दुल्ला कील, ट्यूट क्लास में हाँ प्रेजेंट हो, ट्यूट क्लास में अब्सेंट क्यों रहते हो? है? ट्यूट क्लास भी इंपॉर्टेंट है।
So come to the information system control. Information system controls are the method or the type and devices that attempt to ensure accuracy. Second one is आदित्य टाइमली ज्वाइन करो. Validity. Third one is propriety of information system. Means the three main important characteristics of information system control. This is accuracy, validity and propriety of information system. The control must be developed to ensure proper data entry. The information system control is also divided into another subtypes of control. Proper data entry. Second one is equivalent processing. Expected output and storage. The information system control also ensure proper data entry, processing and processing techniques, different type of expected output and the format of expected output, as well as storage method. Storage method is also important in the information system. You can understand the working of information system control with the help of this diagram. Suppose जो आपने CPU का एक डायग्राम ट्रेडिशनल पढ़ा हुआ है. This is input controls. Come to the processing module. These are processing control. After processing, possible output control and there is also solid repository to store the data for future. Then there is also need for control in storage management, known as storage control. Actually, this is the actual system or information system control. These are the components of information system control: input control, processing control, output control, storage control. With the help of these components, entire information system will work and the entire information system control is carried out. Understand the thing? There are various types of information system control, जिसका भी जब भी ये प्रेजेंटेशन होगा बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा और फर्दर क्वेश्चन भी आता है तब भी ध्यान रखना है. इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल के 4 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज इनपुट कंट्रोल. दीज आर द कंपोनेंट्स और द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल. द फर्स्ट वन इज इनपुट कंट्रोल. Input control, you can also understand the actual from which you work out any form, any user interactive form or any mail server. Whenever you sign up, then there are some restrictions or the validations work out in the expected form or the जो भी आपका desired form है उसमें. Suppose जैसे कोई भी फील्ड है वहां पे एक मोबाइल नंबर की, जब भी आप अपने डेटा एंट्री कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन साइन अप कर रहे हैं, तो वहां पे एक सपोज करिए मोबाइल या कॉन्टेक्ट नंबर का एक फील्ड है. सो ये इंश्योर होना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू डिजाइन और कोडिंग यानी इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट फॉर्म फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड, दैट इन द टेक्स्ट बॉक्स ऑफ in the context of mobile, the user must enter only digits, not alphabet or string. It must be ensured. यानी आप क्या करते हैं वहां पे प्रॉपर वैलिडेशन लगा देते हैं
कि मोबाइल नंबर की जब बात है तो मोबाइल नंबर में डिजिट ही लिखना है। एंड आल्सो जब आप स्ट्रिक्टली मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि यूजर अनअवेयर हो, वो सोचे कि नहीं कांटेक्ट नंबर की बात हो रही है, या आपने मोबाइल नंबर स्पेसिफिक की जगह सिर्फ कांटेक्ट नंबर का ही कैप्शन दिया वहां पे उस बॉक्स में, तो उसमें उसने 7 डिजिट का नंबर लिख दिया, कांटेक्ट नंबर 7 डिजिट का है, बिकॉज उसने सिटी कोड एग्जेम्प्ट कर दिया, छोड़ दिया। समझ रहे? तो उस केस में क्या होगा, आपका डेटा सेव नहीं होगा। यानी ये ऑलरेडी वहां पे कॉन्स्टेंट लगा दीजिए, अदरवाइज आपका रॉन्ग डेटा सेव हो जाएगा। ध्यान रखना है, अगर आपने फील्ड वहां पे लगा के रखी हुई, वैलिडेशन प्रॉपरली लगा के रखा है, तो डेटा सेव नहीं होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो रॉन्ग डेटा आपका सेव हो जाएगा। यानी कि नंबर, मोबाइल नंबर की जगह, कॉन्टेक्ट नंबर की जगह वो अल्फाबेट या स्ट्रिंग लिख देगा, या वहां पे डिजिट भी कम करके लिख देगा। मोबाइल नंबर अगर आपने सोचा है लिखना है तो वो 6 या 7 डिजिट ही लिख देगा। चेकिंग के लिए भी हो जाता है। अभी हम लोग जब प्रोजेक्ट भी बच्चों का देख रहे हैं, इंश्योर कर ले रहे हैं कि प्रॉपर वैलिडेशन लगा है कि नहीं लगा। सेम, इफ देयर इज एनी कॉलम और द फील्ड विथ कैप्शन ऑफ ईमेल, ईमेल एड्रेस अगर आपने पूछा है और उसने ईमेल एड्रेस में @ नहीं लगाया, मतलब नाम लिखा हुआ है, सपोज ram@gmail.com है, लेकिन उसने सिर्फ राम लिख दिया है, सर्विस प्रोवाइडर का नाम नहीं लिखा है, डोमेन नहीं लिखा हुआ है, @ सिंबल नहीं लगाया है, तो प्रॉपर आप वहां पे वैलिडेशन लगा दीजिए कि @ और उसके साथ साथ डॉट के बाद डोमेन नेम भी होना चाहिए। डोमेन नेम का मतलब होना चाहिए कि वो कमर्शियल है, एजुकेशन साइट है, कंट्री कोड, डोमेन नेम, ये सब आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये प्रॉपरली चेकिंग का काम जो है वो वैलिडेशन, इनपुट वैलिडेशन में आता है। अंडरस्टैंड द इनपुट कंट्रोल। So this is very important whenever you are design any information system or any particular form in the information system. So input control directly reflects these type of control. Means information जो भी आप यूजर से ले रहे हैं, इनपुट जो यूजर ले रहे हैं वो प्रॉपरली वैलिडेटेड होना चाहिए और एक्सपेक्टेड फॉर्म में ही होना चाहिए। दिस इज द ओनली टास्क ऑफ इनपुट कंट्रोल। ओके, आप में से कुछ लोगों ने या किसी ने GIGO का नाम सुना है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। व्हाट डू यू मीन बाय गार्बेज इन गार्बेज आउट? में गार्बेज इनपुट, गार्बेज आउटपुट का मतलब क्या हो? व्हाट डू यू मीन बाय गार्बेज? एग्जैक्टली, गलत इनपुट देंगे, यहाँ पे गलत इनपुट देंगे तो गलत आउटपुट मिलेगा। वो तो एक प्रोसेसिंग का पार्ट हो गया कि आफ्टर द रॉन्ग इनपुटेड प्रोसेसिंग, और उसके बाद आपको मिलेगा क्या? रॉन्ग आउटपुट। यहाँ पे बात हो रही है रॉन्ग इनपुट और रॉन्ग आउटपुट की। मतलब गलत आपने इनपुट दिए, गलत इनपुट दिए, वो एक अलग बात है कि प्रोसेस में होता है तो गलत आउटपुट ही मिलेगा। तो कुल मिला के मतलब क्या हुआ कि गलत इनपुट के केस में रॉन्ग आउटपुट मिला, जो कि रॉन्ग का मतलब हुआ इट इज नॉट यूजफुल फॉर यू और एनी यूजर हु इज गोइंग टू एक्सेस योर डेटाबेस और द यूज योर इंफॉर्मेशन सिस्टम और सोल्यूशन। ओके, जैसे सपोज करिए there are many types of workings process which is recorded through the system as input known as garbage input। मतलब कुछ ऐसे इनपुट, जैसे मैंने आपको बताया 6 डिजिट का उसने फोन नंबर दिया, फोन नंबर की जगह नाम लिख दिया, नाम की जगह उसने नंबर लिख दिया। तो ये सब जितने भी रिकॉर्डेड हैं, जितना भी रिकॉर्डिंग है, क्योंकि हर प्रोसेस का रिकॉर्ड होता है, लॉग बनता है, ये जो है वो बोलता है गार्बेज इनपुट। मतलब ये जो लॉग बनता है, ये जो मॉनिटर करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग गार्बेज इनपुट। गार्बेज इनपुट पता कैसे चलता है? क्योंकि ये सब रिकॉर्ड होता है, समझे? जैसे कोई भी आपने डेटा हुआ तो अनरीडेबल डेटा हो गया, या आपने लेट अपडेट किया है, सम क्रेडिकल मिस्टेक्स आल्सो। सपोज आपने टाइप कर रहे थे
गलती से कॉमा लग गया, कॉमा आपने लगने के बाद उसको रिमूव कर दिया, अभी आपने सबमिट बटन नहीं किया, लेकिन वो भी रिकॉर्ड आपका हो जाता है। टाइम आपका ड्यूरेशन ज्यादा बढ़ गया, तो दिस इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनपुट एज वेल एज आउटपुट कंट्रोल। दिस इज आल्सो मॉनिटर्ड, और उसकी बाकायदा एक फाइल बनती है, एक लॉग फाइल बनती है। ओके, so input control consists, first one is security codes, encryption, सभी डिस्कस करते हैं अभी वन बाय वन। दिस कंसिस्ट encryption, data entry screens, error signals, एरर सिग्नल्स मीन जो भी मैसेज आप पॉपअप करते हैं, या कभी कभी आपने देखा होगा कुछ एस्ट्रिक फील्ड बनी होती है रेड कलर से, तो अगर आप उनको स्किप कर देते हैं एंड सबमिट ऑन क्लिक पे कोई भी मैसेज फायर आता है, उसको भी हम लोग कहते हैं गार्बेज इनपुट। तो वो जो मैसेज फायर होता है वो भी रिकॉर्डेड होता है, तो एरर सिग्नल्स इज आल्सो रिकॉर्डेड, समझ रहे हैं। और लास्ट में है कंट्रोल टोटल्स। Control totals is the total number of control which is applied into a particular form or the particular batch। इसमें बैच कंट्रोल भी होता है, काउंटर भी होता है, वो अभी हम लोग सब डिस्कस करेंगे एक एक चीज, सारी टर्मिनोलॉजी। पर बेसिक इनपुट कंट्रोल क्या होते हैं वो मैंने आपको भी यहाँ पे आउटलाइन किए हुए। सिक्योरिटी कोड्स, इंक्रिप्शन, डेटा एंट्री स्क्रीन्स जो भी आपके सामने अवेलेबल होती है, सिक्योरिटी कोड जिससे कि थ्रू आप सिक्योरिटी कोड डालने के बाद वो चाहे ओटीपी हो या कैप्चा हो, जिसके थ्रू आपको एंट्री मिलती है फॉर योर डिजायर्ड पेज और एक्सेस मॉड्यूल। इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन का मतलब हो गया कि कुछ डेटा आपका हिडन फॉर्म में होता है और वो इंक्रिप्ट होता है। सपोज करिए जैसे आप पासवर्ड जब इनपुट करते हैं तो वो हमेशा सब स्पेशल कैरेक्टर्स में शो होता है। तो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज, या सीक्रेट क्वेश्चन के बाद आप जब सीक्रेट आंसर लिखते हैं तो वो भी स्पेशल टाइप के कैरेक्टर्स में मैनिपुलेट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग इंक्रिप्शन कहते हैं। तो हर फॉर्म में ये एक दो स्पेशल इनपुट कंट्रोल जरूर होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं टू एक्सेस योर डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन। डेटा एंट्री स्क्रीन्स वो पर्टिकुलर फॉर्म या पेज, एरर सिग्नल्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एनी कैप्शंस, एनी मैसेज जो भी आपको मिलते हैं अगेंस्ट द इनपुट जो भी आपने किए फॉर्म में, एंड कंट्रोल टोटल, नंबर ऑफ इवेंट्स फायर्ड, नंबर ऑफ बैच, नंबर ऑफ कंट्रोल्स फायर्ड इन पर्टिकुलर एक्शन जो आपके होते हैं, उसको पूरा काउंट करके वो एक डेटा बना देता है। दीज आर द process or the modules in the context of input control. I am going to discuss one by one. यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ ले, अभी ना समझ में आया अगर किसी को। Everyone got the password और सिक्योरिटी कोड। सिक्योरिटी कोड पासवर्ड एक चीज होता है जो मैंने आपको बताया, या ओटीपी। आप जानते हैं पासवर्ड का अब जो है दूसरा कंट्रोल प्रोसेस या अल्टरनेट है, वो है पासवर्ड की जगह ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड या वन टाइम पिन। ये नया आपका ऑप्शन आ गया है। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो ओटीपी के थ्रू भी आप प्रोसेस कर सकते हैं, समझ रहे हैं? हाँ, so now moving in the next context of input control. Whenever we are talking about the input control, some real time of system record entries of every input known as control log. मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जब इनपुट कंट्रोल की बात करते हैं तो जितने भी नंबर ऑफ रॉन्ग इनपुट आप करते हैं, जितने नंबर ऑफ मैसेजेस जो आपको करेक्ट करते हैं, सपोज करिए आपने ब्लैंक फाइल को ही जो है पूरा पेज है उसको सबमिट जैसे ही किया तो सारे जितने भी हैं और उसमें वन बाय वन, अगर आपने उसमें प्रॉपर हायरार्की बना के रखी हुई तो वन बाय वन जितने नंबर ऑफ
डेटा जो है आपके एंट्री वाले बॉक्स हैं या टेक्स्ट बॉक्स हैं या बटन लगे हुए, वन बाय वन सारे मैसेज आपको डिस्प्ले करेंगे, तो उसका एक पूरा लॉग उस पर्टिकुलर टाइम इवेंट पे जनरेट हो जाता है. दिस इज नोन एज कंट्रोल लॉग. ओके. आल्सो देयर आर सम नंबर्ड स्पेशल नंबर, एरर नंबर्स. अगर आपने देखा होगा कभी कभी फॉर्म पे जब आप रॉन्ग इनपुट दे देते हैं तो एक ये जावा के खासकर पेजों में ट्रायंगल टाइप का येलो कलर के बना होता है और उसमें इस तरह का सिंबल बन करके आता है. आर यू केपेबल टू सी द सिंबल? ट्रायंगल में येलो येलो सा ट्रायंगल बन के होता है और उसमें ग्रे कलर का या तो एक्सक्लेमेटरी का साइन होगा या क्वेश्चन मार्क का साइन होगा. और जब भी आप उसको क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे वो पूरी एरर आपकी वहां पे दिख जाएगी. नोटिस किया आपने? कभी किसी ने भी नोटिस किया इसको? किसने नोटिस किया? मधुर सिंह ने. तो आपने कभी ये कोशिश की कि वो अगर उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो एरर आपको बताएगा? अगर जावा का अगर वो जेएसपी पे काम है या जावा पे काम है तो हमेशा जावा स्क्रिप्ट करके आप लिख करके आते हैं. देखा होगा आपने ज्यादातर पेजेस जो आपके बने होते हैं. हाँ, जावा स्क्रिप्ट लिख करके आता है ज्यादातर अगर आपने जावा पे काम किया होगा, क्योंकि ज्यादातर पेजेस जो पहले के बने हुए हैं, अभी इस टाइम तो बहुत ज्यादा और पेजेस हैं वो ईएसपी पे और जावा पे ही बने हुए हैं. अगर जब ईएसपी की बात होगी तब भी वहां पे जावा स्क्रिप्ट यूज होती है या कहीं कहीं वीबी स्क्रिप्ट भी होती है. तो ये जब ये आपको तब दिखता है, यू आर ओनली केपेबल टू सी दिस टाइप एरर इफ इन द इंटरनेट सेटिंग इज प्रॉपरली अरेंज्ड. इंटरनेट सेटिंग पे आप जब जाते हैं तो नंबर ऑफ सेटिंग्स आपको करनी पड़ती हैं. उसमें फ्लैश फाइल को एक्टिवेट करना पड़ता है, एरर मैसेज को वहां इनेबल करना पड़ता है. इंटरनेट एक्सप्लोरर में जब भी जाएंगे या मोजिला फायरबेस की सेटिंग में जब आप जाएंगे तो वहां एरर मैसेज को रीड करने के लिए वहां पे आपको इनेबल करना पड़ेगा. एक चेक बॉक्स लगा होता है, चेक बॉक्स को टिक करना पड़ेगा. देन ओनली यू आर केपेबल टू सी द एक्चुअल एरर. मीन्स यू कैन रीड द एरर, यू कैन अंडरस्टैंड द एरर. तो ये सब लॉग क्रिएट होता है. इसमें एरर नंबर भी होता है. ठीक है. सो एरर जो है कंट्रोल लॉग होता है. सेकेंड, एरर नंबर्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द these type of errors and control logs. Also there is important factor known as control total. सारी डेफिनेशन बताता जा रहा हूं, लिखते चलिए. द कंट्रोल टोटल कैलकुलेशन इज मॉनिटर्ड एंड एज वेल एज एक्चुअल नंबर ऑफ कंट्रोल लॉग्स. कंट्रोल टोटल इज द actual number of calculation of control logs and monitor of control logs. तान्या, तान्या, what is control log? What is control log? This is what is control log. आप ही से पूछ रहा हूं. कंट्रोल लॉग सुन नहीं रही हैं आप? सुन नहीं रही हैं? एनीवन एल्स? या मुझे नाम लेके बुलाना पड़ेगा? दो चार बच्चे ये सब आंसर करते हैं, बाकी सब बिल्कुल
कान में रुई लगा के बैठे हुए हैं। 3 ही 4 बच्चे हैं, घूम घूम के वही आंसर दिया करते हैं। हर्षित यादव, व्हाट इज कंट्रोल लॉग? कंट्रोल लॉग नहीं, कंट्रोल लॉग, लॉग मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टोटल एंट्रीज, इनपुटेड एंट्रीज, number of total inputted entries or the log is known as control log। समझ रहे हैं? हाँ, number of total entries और inputted entries और inputted logs is known as control log। ध्यान रखिए, जो भी बता रहे हैं डेफिनेशन। और कंट्रोल टोटल क्या होता है? हर्षित श्रीवास्तव, ऋतिक श्रीवास्तव, हिमांशु भट्ट, कंट्रोल टोटल क्या बताया मैंने? माइक को अपने मुंह के पास रखो, बताओ। यहां जो लिखा है वो देख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो? क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि नेटवर्क नहीं है, फोन से क्लास कर रहे होगे और जो है वही फोन वाला नेटवर्क होगा आपके पास। 2 MBPS की और 3 MBPS की स्पीड रहती है उसमें। एक्चुअल नंबर ऑफ कंट्रोल लॉस कैलकुलेशन एंड मॉनिटर नोन एज कंट्रोल टोटल। ठीक है, मैं बोल भी तो रहा हूं, चलो नहीं समझ में आ रहा है लेकिन मैं बोल तो रहा हूं। आवाज तो आ रही है मेरी क्लियर कि वहां पे भी डाउट है? आवाज आ रही है क्लियर? तो फिर नोटबुक सामने नहीं रखे हो? मैंने जब भी बताया था लेक्चर जब भी सुनेंगे तो नोटबुक सामने रखिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते चले जाइए। कहीं कोई डाउट है तुरंत पूछिए, ध्यान रखिए। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट द टाइम। नेक्स्ट कम टू द अनदर इंपॉर्टेंट टर्म, रिकॉर्ड काउंट। Record, what do you mean by record? I already told in the concept of when I told you end user computing database management system. What do you mean by record? सुचिता सोनी, रिकॉर्ड क्या होता है बेटा? नो 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 मतलब ना बताओ बेटा, गलत नहीं बताओ। रिकॉर्ड मैंने आपको बताया था प्रॉपरली। सबसे पहले जो आपके डेटाबेस के जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस का जो कॉन्सेप्ट होता है, कंपोनेंट्स होता है, वो होता है फील्ड। पहला तो फील्ड मेन होता है। फील्ड जो है वो एक्चुअल डोमेन नोन एज फील्ड, कॉलम नेम इज नोन एज फील्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड इज नोन एज रिकॉर्ड। एग्जाम्पल भी दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड इज नोन एज रिकॉर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड इज नोन एज फाइल, कॉम्बिनेशन ऑफ फाइल इज नोन एज डेटाबेस। तो फील्ड इज द बेसिक एंटिटी और कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और उसी से फर्दर कंबाइन करते चले जाएंगे तो ये नए नए टर्म बनते चले जाएंगे। सो रिकॉर्ड काउंट, नंबर ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड किस चीज के? जो आप काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। सेकेंड वन इज इनपुट रिकॉर्ड्स। नंबर 3 ऑल द स्टोरेज एंड स्टेजेज ऑफ इनपुट प्रिपरेशन। तो रिकॉर्ड काउंट क्या होता है? पहला
पहला क्या बताया मैंने आपको, सोर्स डॉक्यूमेंट। अभी डेफिनेशन देखिए कैसे बनती है। सेकेंड वन इज सोर्स डॉक्यूमेंटेशन, थर्ड वन इज इनपुट नंबर ऑफ मैसेजेस और रिकॉर्ड, थर्ड वन इज इनपुट प्रिपरेशन प्रोसेस। तो ये इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो रिकॉर्ड काउंट कहलाता है। सो रिकॉर्ड काउंट इज कंट्रोल टोटल दैट कंसिस्ट ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट और अनदर इनपुटेड रिकॉर्ड as well as number of input, number of message, number of input preparation process known as record count. Understand the definition या दोबारा से इसको एक्सप्लेन करें? जल्दी बताइए, जिसको नहीं समझ में आया बताइए। ये सब छोटी छोटी डेफिनेशन छोटे क्वेश्चन में जरूर पूछी जाएगी। और साथ ही साथ जो आप कहते हैं ना कि सेकेंड पार्ट आपका है, सपोज करिए मैंने कहा जो है रिकॉर्ड काउंट कंटेन्स और 3 ऑप्शन दे दिए या 2 ऑप्शन दे दिए, उसमें से 2 गलत दे दिए, तो अगर आपको तीनों पॉइंट नहीं आते होंगे तो उस क्वेश्चन को नहीं आप करेक्ट कर पाएंगे। समझ रहे हैं? गौरव बिस्ट, व्हाट डू यू बाय रिकॉर्ड काउंट? रिकॉर्ड काउंट बताइए क्या होता है? गौरव, गौरविस्ट, उनकी आवाज चली गई है। कशिश गुप्ता, कशिश गुप्ता, कशिश गुप्ता, इनको आवाज नहीं आ रही है, इनको रिमूव कर देते हैं, दोबारा से ज्वाइन करेंगे। लवप्रीत, हाँ बताइए रिकॉर्ड काउंट। जल्दी बताइए फटाफट। हाँ रिकॉर्ड काउंट, व्हाट डू यू मीन रिकॉर्ड काउंट? रिकॉर्ड काउंट, आवाज नहीं आ रही, दोबारा से ज्वाइन करो। अभिनव, अभिनव बताइए रिकॉर्ड काउंट। नहीं बताएंगे आपको भी रिमूव कर देंगे क्लास। आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं और एक्चुअल में नहीं सुन रहे हैं। दोबारा से पढ़िए फिर आइए क्लास में। कशिश गुप्ता, कशिश गुप्ता,
इनका तो माइक ही खराब हो गया। लवप्रीत, रिकॉर्ड काउंट बताओ क्या होता है बेटा? Number of record in the database, and number of records comprises what? Contains what? मधुर बताओ बेटा, रिकॉर्ड काउंट क्या होता है? ये सब क्या आप सुन रहे हैं तो यही जानते हैं। मधुर, रिकॉर्ड काउंट क्या होता है? बस यही तो दिक्कत है राज। रिकॉर्ड काउंट, एंड रिकॉर्ड कंटेन्स व्हाट? बताओ। रिकॉर्ड तो, लेकिन रिकॉर्ड कंटेन क्या करता है? रिकॉर्ड में क्या क्या होता है? जैसे नंबर ऑफ, हाँ, डेटा होता है। डेटा में क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट, इनपुटेड नंबर ऑफ मैसेज, हाँ, एंड इनपुट प्रिपेयर्ड प्रोसेस, ये सब कंटेन करके रिकॉर्ड बनता है। जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, स्टूडेंट का जब रिकॉर्ड बनता है तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड में कौन कौन सी फील्ड होती है? उसका रोल नंबर, उसके फादर का नाम, उसका खुद का नाम, क्लास, एज, मार्क। दिस कंटेन्स, दिस कंप्राइजेस अ रिकॉर्ड। ये सब आप जब फील्ड को कंटेन करेंगे, कंबाइन करेंगे, तभी तो एक रिकॉर्ड बनेगा, है ना? हम्म, समझ रहे हैं? नेक्स्ट कम टू द बैच टोटल। ध्यान से डेफिनेशन समझिए। देखिए बी पार्ट में यही सारे क्वेश्चन होंगे। बैच टोटल, बैच टोटल इज द सम ऑफ इनपुट नंबर ऑफ आइटम और स्पेसिफिक आइटम डेटा विद इन अ बैच ऑफ ट्रांजेक्शन। दिस कंटेन्स द सम ऑफ, बहुत ध्यान से सुनिए, फिर से पूछूंगा, स्पेसिफिक आइटम of data within a batch of transaction। बैच टोटल क्या हुआ? कंटेन द सम ऑफ स्पेसिफिक आइटम और इनपुट डेटा विद इन अ बैच ऑफ ट्रांजेक्शन। जब भी प्रोसेस होता है, हमने आपको बताया भी था, सर ने भी बताया था फर्स्ट, आपको फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, इन द, जब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हुई थी कि ऑल द प्रोसेस इज डन in batch wise also as per the need of your task। this is known as batch processing। तो बैच टोटल क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर बैच ट्रांजेक्शन में नंबर ऑफ जितने भी इनपुट आइटम्स हैं या स्पेसिफिक डेटा आइटम्स हैं, जितने भी आप इनपुट करते हैं, उनका टोटल होता है उस बैच का टोटल, यानी बैच टोटल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, हैश टोटल। Batch or hash. Hash already told you in the second semester context of database management system topic hashing, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो hash total are the sum of data fields that are added together for control comparisons।
in input control. हैश टोटल क्या है? सम ऑफ डेटा फील्ड्स दैट आर एडेड टुगेदर फॉर कंट्रोल कंपैरिजंस in your input control process known as hash total. ठीक है, समझ में आया? इसमें किसी को कोई भी क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है, या इनपुट कंट्रोल में अब तक हमने जो बताया किसी को कोई डेफिनेशन ना आती हो दोबारा से पूछ लीजिए. Hash total is the sum of all data fields that are added together to control comparison during input control process. ओके, उसको हैश टोटल कहते हैं. बैच टोटल इन अ बैच नंबर ऑफ इनपुट्स और स्पेसिफिक आइटम ऑफ डेटा दैट आर इनपुटेड इनटू एनी बैच, उसको कहते हैं बैच ट्रांजेक्शन. रिकॉर्ड काउंट इज द कंट्रोल टोटल कंटेन्स सोर्स डॉक्यूमेंट, इनपुट नंबर ऑफ मैसेजेस एंड इनपुट प्रिपरेशन प्रोसेस. कंट्रोल लॉग आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नंबर ऑफ इनपुट्स या रियल टाइम डेटा स्क्रीन्स इज नोन एज कंट्रोल लॉग. जितनी भी एंट्रीज हैं उनको कहते हैं कंट्रोल लॉग. तो दिस इज डी पॉइंट, ये ई है और ये एफ है. ये लगभग मैंने 6 डेफिनेशंस आपको बताई हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनपुट कंट्रोल, जिसमें सिक्योरिटी कोड, आपका पासवर्ड या ओटीपी होता है, इनक्रिप्शन ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेन योर पासवर्ड और सम सोफिस्टिकेटेड डेटा इज encrypted with another type of form or special character. Data entry screen is the actual form from which you interact or input your data. Error signals, whatever error message or error displayed in your screen after wrong input. And control totals already told you. Next come to the प्रोसेसिंग कंट्रोल. सेकेंड फेज जो आपका था इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल का, पहला इनपुट कंट्रोल था, सेकेंड है प्रोसेसिंग कंट्रोल. प्रोसेसिंग कंट्रोल इज आल्सो इंपॉर्टेंट प्रोसेस ड्यूरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल इन एनी कंप्यूटर सिस्टम और एनी कंप्यूटराइज्ड सॉल्यूशन सिस्टम. इट मस्ट प्रोसेस्ड all data, all inputted data according to the need of the user. Processing control are developed to identify errors in arithmetic calculation, and as well as logical operations. Means processing control is the actual processor, the task of processor and the implementation of processing, which comprises arithmetic calculation as well as logical operation. Actually, processing controls contains 2 sub controls known as hardware control and software control. प्रोसेसिंग कंट्रोल में भी 2 पार्ट आपके हो जाते हैं भाई, अरिथमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन. ये कुछ पार्ट हार्डवेयर का है और कुछ पार्ट सॉफ्टवेयर का है. तो जो प्रोसेसिंग कंट्रोल है वो आपका डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में. फर्स्ट वन इज हार्डवेयर, सेकेंड वन इज सॉफ्टवेयर. नाउ कम टू द हार्डवेयर कंट्रोल. हार्डवेयर कंट्रोल means hardware control are special checks built into the hardware to verify the accuracy of computer processing. It contains, first one is, the first process is malfunction or error detection. Circuitry means
if any error or any mismatch during the circuit problem or detection during the process of your information system. Means suppose in your computer or any telecommunication system or processor that can monitor their operation. Suppose parity checks. Parity checks the loss of correct number of bits in every byte of data processed or transmitted on a network. पैरिटी चेक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. पैरिटी चेक आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को जो आपने पढ़ा था तो उसमें भी सर ने बताया था पैरिटी चेक होता क्या है. पैरिटी चेक्स में एक्चुअल जो आप चेक करते हैं लॉस ऑफ करेक्ट नंबर ऑफ बिट्स इन एवरी बाइट ऑफ डेटा प्रोसेस और ट्रांसमिटेड इनटू नेटवर्क. नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने कोई भी फ्रेम सेंड किया है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर तो ऑल फ्रेम्स आर नॉट सक्सेसफुली सेंड देयर डेस्टिनेशन एंड. Some frames are lost in traveling in the way. तो ये जितने भी आपके फ्रेम लॉस हो जाते हैं, नंबर ऑफ बिट्स करेक्ट बिट्स जो आपकी लॉस हो जाती है, डैमेज हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग और द ट्रेवलिंग, दिस इज नोन एज माल फंक्शन डिटेक्शन और पैरिटी चेक. सेकेंड वन इज रिडंडेंट कंपोनेंट. Is anyone familiar with redundant keyword? Redundant पता है आपको कीवर्ड क्या होता है? अरे बोलिए तो हर्ष. redundant no, this is not. I already told you in no. redundant का मतलब होता है डुप्लीकेट. बिल्कुल 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 करेक्ट सुचिता. redundant मीन्स डुप्लीकेसी, रिप्लिका. redundant का मतलब डुप्लीकेसी और रिप्लिका. मोस्टली ये डेटाबेस का टेक्निकल टर्म है. जब आप देखते हैं कि किसी भी डेटाबेस में सेम नेम के 2 एम्प्लॉय स्टूडेंट पर्सनल एग्जिस्ट इन द रिकॉर्ड, मोस्टली यहां पे बात होती है. दिस इज द मेन मॉल फंक्शन और द एरर बाय विच रोल नंबर कॉन्सेप्ट इज यूज. जब हम रोल नंबर की बात करते हैं, एम्प्लॉय आईडी की बात करते हैं या अकाउंट नंबर की बात करते हैं, जिसमें भी यूनिकली आप आइडेंटिफाई कर पाए, तो ये इसीलिए करते हैं कि रिडंडेंट डेटा या रिडंडेंट रिकॉर्ड हमारा एग्जिस्ट ना करे. तो जैसे ही आपने रोल नंबर फील्ड एक ऐड कर दी तो डेटा आपका यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा. तो रिडंडेंट का मतलब डायरेक्टली डुप्लीकेसी. सो रिडंडेंट कंपोनेंट्स मींस मल्टीपल रीड राइट ऑपरेशंस, मल्टीपल रीड राइट हेड्स on any storage device, on any disk that checks and promote the accuracy of reading and recording activity. This is known as redundant component. This is also controlled by the hardware control. Second one is software control. After this I am going to end the lecture. इतना तो पढ़ा ही ले. Software controls ensures the right data are being processed. For example, operating system or other software checks the internal file labels at the beginning and the end of any disk or storage. The software control is also establish various checkpoints. First one तो आपको ये चेक करता है क्या? Actual process. Second one is checkpoints. चेक पॉइंट से आप बहुत अच्छे से अवेयर है. व्हेन यू आर टाइपिंग एनी लॉन्ग डॉक्यूमेंट इन द आफ्टर समटाइम्स आफ्टर टाइपिंग फ्यू लाइन्स आफ्टर टाइपिंग फ्यू पेजेस यू कंटिन्यूअसली प्रेस कंट्रोल प्लस एस. कंट्रोल एस सभी आप लोग प्रेस करते रहते हैं जिससे कि कोई भी
मिस हैपनिंग हो तो आपका डेटा उस पॉइंट तक सेव हो जाए, इसलिए सभी लोग कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, नहीं तो बाद में आखिरी में भी सेव करने का ऑप्शन आता है, लेकिन बीच बीच में सभी लोग कंट्रोल एस, ये प्रैक्टिस में शुरू से बताया जाता है कि जब भी आप कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन टाइप करें सिस्टम पे कंसोल पे, तो बीच बीच में एक ड्यूरेशन पे आप कंट्रोल एस प्रेस करते रहें। सेम इसी तरह चेक पॉइंट्स भी काम करता है कि whenever any long process is going on, number of checkpoints is encountered so that all the process will be checked time to time, unit to unit after successful completion of any particular task। तो लास्ट में आपको ये ना हो कि दोबारा से फिर से पूरी एंटायर प्रोसेस को चेक करना है, रादर देन मीट जो है टाइम टू टाइम, मीट टू मीट आप इसको चेक करते रहेंगे। दिस इज आल्सो डन बाय द सॉफ्टवेयर कंट्रोल। दिस प्रोसेस इज आल्सो कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। और इसका एक इंपॉर्टेंट जो आपका प्लस पॉइंट होता है, फैसिलिटी ऑफ रोल बैक। facility of rollback means whenever any points your process is not completed, entire process is roll back। यानी कि आपकी आधी इंफॉर्मेशन सेव हो गई, आधा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया, आधा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। कंप्यूटर सिस्टम की एक खास बात होती है, या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जब भी प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम भी आप इस तरह से डेवलप करते हैं कि या तो वो कंप्लीटली सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, कोई भी इंटरमीडिएट स्टेट नहीं होती है। सो एंटायर प्रोसेस इज रोल बैक मीन्स द सिचुएशन और द स्टैटिक्स ऑफ प्रीवियस बिफोर द प्रोसेसिंग इज रिमेन सेम। दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर कंट्रोल विद द फैसिलिटी ऑफ रोल बैक। आप जैसे पैसे भी निकालने जाते हैं, सपोज करिए कि कभी भी ऐसा हुआ कि रॉन्ग इनपुट चला गया और आपको लग रहा है कि मशीन चल गई, लेकिन क्या होता है उसी समय सारा प्रोसीजर आपका रोल बैक हो जाता है, अकाउंट से कुछ भी डेबिट नहीं होता है। आपको मशीन चलने की आवाज जरूर आएगी, लेकिन प्रोसेस आपका पूरा रोल बैक हो जाता है। दिस इज ओनली कंट्रोल्ड बाय द सॉफ्टवेयर कंट्रोल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसेसिंग कंट्रोल। ठीक है, अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिख दीजिए। चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिखिए फटाफट। और डोंट लीव द क्लास। ध्यान से पढ़िए।